سب میں بڑھانا ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے، عبد القادر شاہ کا ہے، ریاض حسین شاہ کا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں فرض ہے ہر خطیب پر اس وقت کہ یہ حدیث پڑھ کے سنائے۔ طاہر القادری کہہ رہا ہے بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اہل بیت اطہار علیہ الرضوان کے مقام سے بڑھانے کا مطلب کیا؟ اوپر نبوت کا مطلب، وہاں لے جاؤ نبوت کے برابر کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے مقام۔ اب دیکھو یہ کن لوگوں کا مذہب ہے۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والے زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل سے بھی علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ کے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ کو سجدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی متحری نہیں ہیں۔ تو کہیں تو پھر کہتے علی اللہ، ہم کہتے علی خالق ہے اللہ، علی رازق ہے اللہ، علی رب الارباب۔ اہل سنت کے مجمع میں نرم و نازک سنی گلشن کی کلیوں کو مسلنے کے لیے یہ ظالم بدمست ہاتھی کس طرح روند رہا ہے سنی گلشن کی کونپلوں کو۔ میں واضح کہہ رہا ہوں کسی میں دم ہے پوری دنیا میں وہ اس کا رد کرے کہ اس نے کہا کہ بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ شیخ الاسلام صاحب فرما رہے ہیں ان کے تو مرتبے کا عالم ہی کوئی نہیں دنیا میں، ان کی جتنی بڑی لائبریری ہے اتنی تو کسی کی لائبریری نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر خطیبوں نے بڑھانے والی تقریریں کی۔ تو میں کہتا ہوں اس طاہر القادری کو اگر رب کے نبی کو حد شرعی سے بڑھائیں تو جہنم ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ الرضوان یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شرعی حد سے بڑھانا یہ کس نے تجھے اجازت دی ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری اپنے لفظ سن لے کہ بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مولا علی کرتے ہیں بس یہی ہے کہ جہنم جانا پڑتا ہے، ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کہتے ہیں پیار کو حد میں رکھو، وگرنہ وہ پیار نہیں وہ نار ہے، وہ آر ہے، وہ غیروں کا کاروبار ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے۔ یہ ہے رفت کی کاشتکاری، اور یہ ہے رفت کے بیوپاری، اور یہ کرواتے ہیں اپنے جلسوں میں معاذ اللہ جہنم کی تیاری۔ یا صدیق، یا علی، یا حسن، بے گناہ بے خطا، طیبہ طاہرہ، سن لو سب یہ برملا، ہم ہیں، ہم ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین
वअला आलिका व अस्हाबिका या अव्वलन नबिय्यीन व या आखिरन नबिय्यीन मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही व जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैर मुनक़ासिमी मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़िरीन नाज़िरीन सामीईन, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम आज हम सब को इस अज़ीमुश्शान इंकिशाफ़ हक़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की इस कावश को अपने दरबार में कबूल फरमाए और इस पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंकिशाफ़ हक़ कॉन्फ्रेंस में हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि अहले सुन्नत पर रिफ्ज़ का हमला कैसे हुआ। ये इस वक़्त का नहायत ही अहम मौजू है और तकरीबन यकीनन हर सुन्नी आलिम पर यह बयान करना ज़रूरी है, हर शेख तरीक़त पर। वैसे तो जो कुछ कुरान में आया है, सुन्नत में आया है, सारे मौज़ूआत ही बड़े ज़रूरी हैं, मगर जब मुआशरे में लोगों के पेट में दर्द हो रहा हो तो दवाई सर दर्द की देना ये कोई मुनासिब नहीं लगता, बल्कि बेफ़ायदा है कि जब सर दर्द है ही नहीं तो दवाई सर दर्द की क्यों। ये मतलब नहीं कि सर दर्द की दवाई देनी नहीं चाहिए या वो देने वाला अच्छा नहीं या वो दवाई अच्छी नहीं, मतलब यह कि उसका वक्त और है। और पेट दर्द हो दवाई सर दर्द की दें तो पेट का दर्द तो ख़त्म नहीं होगा। तो इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो तकरीर मैं करने लगा हूँ, वैसे ये नहीं कि मेरी सीख के कोई करे, अपने तौर पर अल्लाह के फजल से सब जानते हैं। मैं तवज्जो कराना चाहता हूँ कि पेट दर्द के मौका पर पेट दर्द को दूर करने वाली दवाई दी जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में जो हलचल मची हुई है इस बात पर कि हमारे अकाबिर असलाफ आइम्मा ने जो 14 सदियों में लिखा कुरान और सुन्नत की रोशनी में और उस पर कायम रहे, आज उसे माज़अल्लाह नासबियत और खारजियत करार दिया जा रहा है। और जिसका हमारे अकाबिर ने रद्द किया, आज उसे अहले बैत की मोहब्बत करार दिया जा रहा है। यानी जो कुरान और सुन्नत से तसादुम है उसे अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की मोहब्बत करार देकर एक बहुत बड़ी वारदात की जा रही है। ये लोग जो शिकार करते हैं तो उनका एक उसूल है पुराना,
मतलब शिकारी और जिसको शिकार करना है, इनका आपस में एक दुश्मनी है। और वो शिकारी, वो परिंदे जिनको शिकार करना है, वो बड़े होशियार होते हैं, पहचान जाते हैं कि ये खतरनाक बंदा है, ये इस तरह करेगा, ये पकड़ लेगा। तो फिर शिकारी उन्हीं की तरह का एक परिंदा तैयार करते हैं जिसको अच्छी तरह खिलाते पिलाते हैं, और वो परिंदा फिर उन परिंदों में जाके उन्हें ये शो करता है कि अब मैं तो तुम्हारी तरह कहीं हूं ना, मुझसे तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसकी वाबस्तगी पीछे शिकारी के साथ है, क्योंकि उसने शिकारी से काफी माल खाया हुआ है। तो इस बुनियाद पर वो खुद शिकार नहीं होगा, लेकिन औरों को शिकार करवाने में किरदार अदा करेगा। और भोले भाले वो परिंदे समझेंगे कि ये हमारा ही है, लेकिन वो किसी और का है, किसी और के एजेंडे पर है। ये वो किरदार है जिसको मैं अक्सर बयान करता हूं। अब पूरी दुनिया में दरबुल मिसल बन गया है कि कुछ वो लोग हैं, कुछ वो पीर हैं, वो आलिम हैं, वो खतीब हैं, वो नात खान हैं, या अवाम ऐसे हैं कि जो सवारियां बिठाते वक्त सैयदना दाता गंज बख्श अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का बोर्ड लगाते हैं, मगर उतारते वक्त गामेशा उतारते हैं। यानी इधर से अपनाइयत जाहिर करते हैं कि हम सुन्नी हैं, हम सारे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाले हैं, और उधर उनका राब्ता किसी और के साथ। ये जो वारदात हो रही है, इस वारदात के खिलाफ सीना तान के खड़ा हो जाना, ये हमारा जुर्म है इस वक्त का, कि हमने ऐसे वारदाती ड्राइवरों को, कंडक्टरों को, हेल्परों को, ऐसे जो वारदाती थे, हमने उनकी गाड़ियों से दाता साहब का बोर्ड उतारा है कि ये वारदात ना करो। अगर तुम गामेशा वाले हो तो बोर्ड भी गामेशा का लगाओ, तुम क्यों दाता साहब का बोर्ड लगा रहे हो? उन्होंने अवाम को यह धोखा देना शुरू कर दिया, ये बंदा तो दाता साहब को मानते ही नहीं, ये दाता साहब कैसे ने बोर्ड उतार लिया। ये नहीं बताते कि दाता साहब का बोर्ड फराडियों की गाड़ी से उतारा है, कि जो दाता साहब के नाम पे शिकार कर रहे हैं, और अहले सुन्नत के कीमती लोगों को जिन्होंने जन्नत जाना है, उन्हें माज़अल्लाह जहन्नम के दरवाजे पर जाके उतार रहे हैं। इस बुनियाद पर यह हमारा जो किरदार है, आज से नहीं कई सालों से है कि हम इस किरदार के खिलाफ लोगों को बेदार कर रहे हैं, और अब वो बेदारी की तहरीक अल्लाह के फजल से नुक्ता उरूज पे पहुंच गई है। अब बच्चा बच्चा हमारी तकरीर लोगों के सामने कर रहा है। ये मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर कि वो तकरीर जो बड़े बड़े आलिम फाजिल पीर करने से झिझक महसूस कर रहे हैं, हमसे सुन के वो बच्चों ने भी करना शुरू कर दी है। ये फैज़ है इमामुल असर हाफिजुल हदीस हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी का, कि हमने बच्चों को भी अल्लाह के फजल से बोलने की एक जुबान दे दी है, और वो बातिल के खिलाफ बोल रहे हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे जुल जलाल ने ये जो मुखालिफीन का किरदार है आज, के हक में बातिल की अमेज़श करके शो करना के हक है, मसलन जहर के ऊपर थोड़ी सी मिठास लगा लेना, ये पुराना वारदातियों का तरीका है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आले इमरान के अंदर आयत नंबर 78 है, अहले किताब में से जो वारदाती लोग हैं, बिलखुसूस यहूद, वो क्या करते हैं, व इन्न मिनहुम लफरीका, अल्लाह ताला फरमाता है उन अहले किताब में से एक गिरोह ऐसा है, यलवून अलसिनतहुम बिल किताब, कि वो किताब पढ़ते हुए जो उनको दी गई है अल्लाह की तरफ से, अपनी जुबान फेर के अमेज़श करते हैं, जुबान फेर के, यानी ये उनकी महारत है फराड की। यलवून अलसिनतहुम बिल किताब, इस अंदाज में किताब को पढ़ते हैं, पेश करते हैं, ताकि लोग क्या समझें, लितहसबूहु मिनल किताब, कि जो वो मिलावट कर रहे हैं तुम समझो कि नहीं वो भी किताब का हिस्सा है।